دوسری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کامیابی سے ہمکنار۔ آپ کو بتا دیں کہ 17 دسمبر کی شام مہانگر کولکاتہ کے مہاجاتی سدن میں کولکاتہ الہدا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی با اشتراک صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کے زیر اہتمام دوسری رسول رحمت کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث نئی دہلی حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظ اللہ نے کی۔ سیکریٹری کولکاتہ الہدا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی مولانا ذکی احمد مدنی نے اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس مادیت پرستی کے دور میں ضروری ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل دنیا کو روشناس کرایا جائے۔ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں مقامی و بیرونی ریاست کے جید عالم دین و مفکرین کی بابرکت جماعتیں موجود تھیں، جنہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان افروز باتوں سے سامعین کے دلوں کو منور کر دیا۔ کولکاتہ میں منعقد اس دوسری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی خاص بات یہ رہی کہ اس اہم موقع کے تحت حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم گوشوں پر مشتمل ایک خصوصی شمارہ الحادی کا شاندار افتتاح کیا گیا، جسے لوگوں نے خوب سراہا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور کتاب کو مرتب کرنے میں کولکاتہ الہدا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور اس کے ذمہ داروں کا تعاون کیا، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے سماج میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، جن مسائل سے ہم الجھ رہے ہیں روز بروز، اور جو مسائل شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے کہ ہم کس سنگین دنیا میں، کس سنگین ماحول میں جی رہے ہیں، اور ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے، اور آگے ہمیں کن الجھنوں کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس میں رسول رحمت کا پیغام بہت اہم ہے، اور اس کو ہی عام کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی شدید ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ان کے پاس یہ پیغام جانا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کے سوا دنیا میں نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ جماعت اہل حدیث کی جانب سے مولانا ذکی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اس کا انتظام کیا۔ یہ میرا دوسرا سال آنا ہوا ہے۔ اس کام کو ہم لوگ کر لیں، سیرت طیبہ کو دنیا میں پھیلا دیں، تو کافی حد تک دنیا میں امن امان قائم ہو جائے گا۔ جو آج ہوئی ہے مہاجاتی سدن میں، یہ ایک بہت ہی عمدہ پروگرام ہوا ہے، اور خاص طور سے کلکتہ کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے تمام باتیں لی گئی ہیں، اور مقررین نے علیحدہ عنوان پر حضور کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، اور جگہ جگہ اس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ رسول رحمت آج کے دور میں یہ لقب جو انہوں نے نام دیا ہے اپنی کانفرنس کا، یہ بہت ہی عمدہ نام ہے، اور اس سے ہمارے سماج میں دوسرے طبقوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ عوام کے سامنے، خاص طور سے ہندوستان کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں کہ ہمارے رسول کی حیثیت کیا تھی اور ان کا پیغام کیا تھا، انہوں نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اگر اس کو بڑے پیمانے پر کیا جائے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ذکی مدنی صاحب، جنہوں نے ایسا پروگرام کیا، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سیرت پر یہ کانفرنس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری میسنجر اور پیغمبر تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے، بلکہ سارے مخلوق کے لیے، ساری جو سرشٹی اللہ تعالیٰ نے رچی ہے، اس سب کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے ٹاپک یہاں دیے گئے تھے، سب جانوروں سے لے کر کے اور ساری انسانیت کے لیے، اور ہر ورگ اور ہر جگہ کے لیے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ثابت ہوئے تھے، اور کس طریقے سے سب کے لیے مفید تھے، اور
आपने वही उसी सीरत को इस वक्त दुनिया को अपनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मुसलमान उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बहुत हद तक दूर हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जो आपने तालीम दी थी कि खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सब एक माँ बाप की औलाद है, सब एक ही के संतान होता और सब एक है इंसानियत में। तो खून जितने रगों में दौड़ रहा है वो सब एक है और सबकी रिश्तेदारियाँ हैं। उस रिश्तेदारियों को निभाना सबसे बड़ा तुम्हारा फ़र्ज़ है। हमने जो अब अपने को धर्मों में बांटा है या बिरादरियों में बांट लिया है या ज़बान की बुनियाद पर या मुल्कों की बुनियाद पर, तो वो सब इस्लाम उसको बरकरार नहीं रखता। सिर्फ पहचानने के लिए ये नाम है, जैसे किसी का नाम रमेश हो और किसी का नाम अब्दुल्ला हो, ये सिर्फ पहचानने के लिए ऐसी सूरतें होती हैं। और मैं एक बात ख़ास तौर पर यह अर्ज़ करूँगा यहाँ कि जितने दुनिया में धर्म हैं उसमें से 5 चीज़ें बहुत बुनियादी हैं जिसकी सब ताकीद करते हैं, और वही मेरे ख़्याल से जो इस्लाम की बुनियादें हैं या जितने नबी ऋषि मुनि आए उन सब की तालीमात का ख़ुलासा अगर कुछ बचा है तो वही है। उसको भी हमने, जिस पर कोई झगड़ा नहीं है, हमने उसको भी ख़त्म किया। वो क्या है कि जान की हिफाजत होनी चाहिए। ये सारे धर्मों में है, जान पर खेल करके जान को बचाना है, ये सारे धर्मों में है और इस्लाम में उसमें ज़्यादा ताकीद है। दूसरे ये है कि अक्ल से जो खिलवाड़ हो रहा है इस वक्त और ख़ुसूसन इस मीडिया के ज़माने में, उस अक्ल की हिफाजत होनी चाहिए। आज दुनिया पागल हो रही है और पागल बना रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़े से। और इसी तरीक़े से इज़्ज़त है, किसी की भी इज़्ज़त है, पर्सनालिटी है, ख़ास तौर पर औरतों की इज़्ज़त है। एक आदमी दूसरे की इज़्ज़त जब चाहता है उछाल देता है, जब चाहता है उसको बेईमान कह देता है, जब चाहता है उसकी बहू बेटियों को कुछ कहता है। तो इज़्ज़त इंसान की ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसको सारे धर्मों में उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कि और ख़ुद दीन पर नहीं चल रहे हैं, दीन को नहीं समझ रहे हैं और समझते हैं कि दीन ही अफ़यून है। तो ये सारे धर्मों में है कि धर्म का और दीन का पालन होना चाहिए और कम से कम उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। ये और माल है, माल के बगैर इंसान जी नहीं सकता, इसीलिए चोर का हाथ काटा जाता है इस्लाम में। और भी हर मुल्क में उसकी सज़ाएं हैं, हर सोसाइटी में सज़ाएं हैं। माल महफूज नहीं रहा तो फिर इंसान डगमगा जाएगा और कोई भी किसी भी तरीक़े से इंसान जी नहीं सकेगा। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका माल है, तो आप वो पॉकेट कटना नहीं चाहिए, उस पर डाका नहीं डालना चाहिए, उस पर बेजा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बेजा टैक्स जो हुकूमत का हिस्सा बनता है उसको छुपाना और चुराना नहीं चाहिए। ये 5 बुनियादें हैं जो जब से मज़ाहिब की और धर्मों की तारीख़ और हिस्ट्री मिलती है उस वक्त से आज तक किसी ने उसमें इख्तलाफ नहीं किया है। बदकिस्मती का ये वक्त है कि हमने उसको इस वक्त उसको भी गंवा दिया है और सब दीन और धर्म के नाम पर हो रहा है। इसलिए ये पैगाम है कि इन 5 बुनियादों पर कम से कम इकट्ठा होकर के सारी इंसानियत और मानवता इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 5 चीज़ों का ख़ास तौर पर पैगाम दे करके इसके तमाम जो ज़ैली और ब्रांचेज़ और इसकी छोटी बड़ी चीज़ें हैं उसको बहुत मुनज़्ज़म और बहुत तरतीब से अमल से करके दिखाया और सारी दुनिया में ईमान का और दीन का और भाईचारे का दौरा हो गया। मैं आखिरी बात, तो ये कॉन्फ्रेंस जिस मौजू पर मुनक़िद हुई है, ये उन्वान ख़ुद अपनी जगह एक पैगाम तमाम मुसलमानों को दे रहा है कि हम अगर अक़ीदा और ईमान सीखें तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। हम अखलाक और करैक्टर और किरदार भी बनाएं और संवारें तो सबसे पहले हम ये देखें कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, कैरेक्टर, किरदार कैसा था और किन के साथ कैसा था। अपने घर में अपनी बीवी के साथ कैसा था, अपने बच्चों के साथ कैसा था, पड़ोसियों के साथ कैसा था, अपने दोस्तों के साथ कैसा था और अपने दुश्मनों के साथ कैसा था। उसके ताल्लुक़ से तफसीली बातें आपके सामने आई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, किरदार, अखलाक सबसे ऊंचा था। वो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। उसी ऊंचे अखलाक की तरफ हम लोग दावत दे रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस की दावत है कि हम सबों को चाहिए कि अपने कैरेक्टर, किरदार, अखलाक, ईमान, अक़ीदा, अमल सब की इस्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साये में करें और उसके तनाजुर में करें। इसी वजह से इस मौके से हम लोगों ने
جو किताब निकाली है और मुजल्ला अल-हादी का ख़ुसूसी शुमारा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर जो मुफ्त में तकसीम भी किया गया है, ये किताब सबों को दी गई है ताकि तमाम लोग अपने अपने घर में इसको ज़रूर पढ़ें, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ। इसमें तमाम उन्वान शामिल हैं, अक़ायद, ईमान, अखलाक, किरदार, कैरेक्टर, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ कैसा अखलाक होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें तालीम दी है और आपने करके दिखाया है। वो सारी बातें इस किताब के अंदर है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इसका दर्स अपने घर में ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम उन तक पहुँच जाएगा। इसकी तरफ एक हमारे एक मुकर्रिर ने भी इशारा किया है कि आइंदा ये प्रोग्राम हो तो दूसरे गैर मुस्लिम के जो स्कॉलर वगैरह हैं उनको भी दावत दी जाए। इस तरह की महफिलों को दराज करने की ज़रूरत है। इसमें इसका इनकार नहीं किया जा सकता। सालाना यहाँ ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है ना, तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस, ये तीसरी है। सेकंड ठीक है, जी जो भी हो, 13 चलिए साल पहले हुई थी एक हुई थी ना, हाँ दूसरी हो या तीसरी, बहरहाल एयरली ये कर रहे हैं सालाना इस तरह के प्रोग्राम। और बाकी उस स्टेट के अमीर सदर मौजूद हैं, इनका भी ये प्रोग्राम होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पर, ज़िला सतह पर भी सीरत के पैगाम को आम किया जाए।